السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی ریئل انسیڈنٹ ہیں اور آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کی یہ سٹوری دانش خان نے کوہاٹ سے سینڈ کی ہے۔ کسی زمانے میں ایک بڑھیا عورت رات کو قبرستان جا کر وہاں مردوں سے مردے نکال کر ان کا کفن اتارتی تھی، اور وہی کفن دن کو بازار میں بیچ کر اپنا گھر چلاتی تھی۔ پہلے وہ ساری قبریں چیک کرتی تھی، جس میں تازہ لاش ہوتی اس کا کفن لے لیتی، اور باقی جو گل سڑ جاتے تو وہ اس کے کسی کام نہیں ہوتے تھے۔ یہ کام وہ اپنے شوق سے نہیں کرتی تھی، وہ مجبور تھی، کیونکہ اس کا کوئی بھی رشتہ دار اس دنیا میں نہیں تھا، کیونکہ وہ بیچاری اکیلی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ اکیلی عورت کیسے مردے نکالتی ہے اور ان پر سے کفن کیسے اتارتی ہے۔ ایک لڑکا جو اس بڑھیا کا پڑوسی تھا، ایک رات اس نے بڑھیا کو قبرستان جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، اس کے دل میں خیال آیا۔ وہ کہنے لگا کہ اتنی رات گئے اس بڑھیا کو قبرستان میں کیا کام ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں ڈوبا تھا کہ پھر کیا دیکھتا ہے کہ بڑھیا بہت سے کفن ہاتھ میں لیے واپس آ رہی ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی کمزور سی بڑھیا کیسے اتنی جلدی اتنے سارے کفن اتار کے لا سکتی ہے۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے وہ پوری رات نہیں سویا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بڑھیا اس کی پڑوسن ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ اگلی صبح وہ اس عورت کے گھر گیا، اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دے کر طنزاً کہا کہ آج تم اس بڑھیا کی کیسے یاد آ گئی؟ تم یہ دیکھنے آئے ہو کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں ماں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک مجھے بتا سکتی ہیں۔ وہ بولی کہ نہیں بیٹا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تم نے مجھ سے یہ پوچھ لیا۔ وہ بولا کہ ٹھیک ہے اماں جی، میں اب چلتا ہوں، میں پھر دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا۔ وہ لڑکا کچھ آگے جا کے رک گیا، پھر اپنا سر لیفٹ سائڈ پہ کر کے بے خوف ہو کر بولا کہ اماں مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ جی بیٹا پوچھو، کیا بات ہے؟ وہ بولا کہ ماں آپ پہلے میرے سر کی قسم کھائیں کہ میں جو پوچھوں گا آپ نے صحیح جواب دینا ہے، آپ جھوٹ نہیں بولو گی۔ اب کی بڑھیا کو تھوڑا تعجب ہوا اور تھوڑا شک بھی کہ آخر یہ نوجوان پوچھنا کیا چاہتا ہے، اور وہ بھی قسم دے کر۔ تھوڑی دیر بڑھیا گہری سوچ میں پڑ گئی۔ نوجوان ان کا دھیان اپنی طرف بٹاتے ہوئے کہنے لگا، آپ اماں جی کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بولی کہ کچھ نہیں بیٹا، تم نے جو پوچھنا ہے تم پوچھ سکتے ہو۔ وہ لڑکا بولا کہ اماں آپ رات کو قبرستان جا رہی تھی، میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا۔ بیچاری بڑھیا یہ سنتے ہی نیلی پیلی ہو گئی اور کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ بولا کہ ٹھیک ہے اماں، اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہے تو اگلی مرتبہ میں اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ قبرستان کے راستے کی نظر بندی کروں گا، اور اگر کوئی مجھے دکھا تو اسے پکڑ لوں گا۔ اب بیچاری بڑھیا کرے تو کرے کیا، اسے سچ بتانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں دکھائی دیا۔ تو بڑھیا بولی کہ سنو بیٹا، آپ نے رات کو جس عورت کو دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں، اور آپ سے ہاتھ باندھ کر بنتی کرتی ہوں کہ یہ بات کسی اور کو مت بتانا۔ تو وہ لڑکا بولا کہ ٹھیک ہے اماں جی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ ایک رات آپ مجھے قبرستان اپنے ساتھ لے کر چلنا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کفن کیسے نکالتی ہیں۔ یہ بات بڑھیا کو ماننی پڑی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک رات کے لیے تم ہے کہ میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ پھر وہ رات آ گئی۔ بڑھیا آگے آگے چل رہی تھی اور وہ لڑکا اس کے پیچھے پیچھے۔ قبرستان پہنچے تو بڑھیا نے نوجوان کو جھاڑیوں کے پیچھے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکا جھاڑی کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے دیکھ رہا تھا۔ بڑھیا ایک قبر کے پاس کھڑی ہو کر ہونٹوں کو حرکت دینا شروع کر دیا۔ وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ اچانک قبر سے مٹی اڑنا شروع ہو گئی۔ ایک مردہ کفن میں لپٹا قبر کے سینہ چاک کر کے بڑھیا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بڑھیا کچھ منٹ کے لیے رک گئی اور پھر ہونٹوں کو حرکت دینا شروع کیا۔ وہ کچھ پڑھنے لگی۔ اس بار آہستہ سے مردے کا کفن اترنے لگا۔ مردے کا کفن اترتے ہی
नौजवान के जिस्म डर की वजह से कांपना शुरू हो गया। मुर्दे की वहशतनाक शक्ल से नौजवान हैबत ज़दा हो गया। बुढ़िया के हाथ कफन से लेते हुए फिर होठों को हरकत देने लगी। वो फिर कुछ पढ़ने लगी। इस दफ़ा इसका पढ़ना मुर्दे को वापस कब्र तक पहुंचा गया। उसने टोटल 3 मंतर पढ़े थे। एक मंत्र मुर्दे को कब्र से निकालने के लिए, दूसरा मुर्दे को कफन उतारने के लिए और तीसरा मुर्दे को वापस कब्र में डालने के लिए। बुढ़िया कफन हाथ में पकड़े उस लड़के को इशारा किया कि चलो वापस घर को चलते हैं, और वो दोनों घर को चल पड़े। दूसरे दिन वो लड़का बुढ़िया के घर दोबारा आ टपका। इसे देखते ही बुढ़िया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो बोली कि अब यहाँ क्या लेने आए हो? वो लड़का बोला कि अम्मा जी नाराज़ क्यों होती हो? आज के बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। बस मेरी शर्त ये है कि आप मुझे इतना बता दो कि आप वहाँ मुर्दे को निकालने के लिए क्या पढ़ रही थी। इस बार वो बुढ़िया बहुत गुस्से में आ गई। गेट की तरफ इशारा करते हुए बोली कि मेरे घर से निकल जाओ। वो लड़का बोला कि नहीं माँ जी, मैंने नहीं जाना। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो बुढ़िया समझ गई कि ये लड़का बहुत लालची है, इसे यहाँ निकालने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो बुढ़िया बोली कि ठीक है बेटा, तुम्हें वो मंत्र चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूँगी, जिससे मैं अपना पेट पालती हूँ। लेकिन एक बात है, क्योंकि मैं ये तुम्हें मंत्र पूरे 1 महीने के बाद दे सकती हूँ, अभी नहीं दे सकती। वो बोला कि अम्मा जी अभी क्यों नहीं दे सकती? बुढ़िया ने ये बात उसे गुस्से से कही। उसके बाद उस लड़के ने कहा कि ठीक है माँ जी, मैं अब चलता हूँ, आपसे पूरे 1 महीने के बाद आकर मिलूँगा। मगर अभी 20 ही दिन गुजरे थे कि बुढ़िया सख्त बीमार हो गई। उस लड़के को पता चला कि बुढ़िया बीमार है तो वो भागा भागा उसके घर गया। वो लड़का जानता था कि बुढ़िया मरने के करीब है। वो बुढ़िया के पास जाकर बोला कि माँ जी आंखें खोलो, अब आपकी तबीयत कैसी है? उस बुढ़िया ने आंखें खोली, उस लड़के को देखा और बोली बेटा अब मैं ये दुनिया छोड़ने वाली हूँ, इससे पहले कि मैं आपको वो मंत्र बता दूँ। वो लड़का बोला कि जी अम्मा बता दो। बुढ़िया ने 2 मंत्र बताए, तीसरा बताने ही वाली थी कि वो चल बसी। अब वो लड़का हैरान और परेशान मारा मारा फिर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि काश मैं थोड़ी देर पहले बुढ़िया के पास पहुंच जाता तो शायद मुझे तीनों ही मंत्र हासिल हो जाते। खैर जो होना था सो हो गया, अब क्या करूं? चलो वैसे ही मेरे पास 2 मंत्र हैं, सिर्फ एक की कमी है, इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। आज रात उस लड़के ने कब्रिस्तान जाने का इरादा कर लिया। रात के 12 बज रहे थे, शायद अभी तक कोई ना कोई जाग रहा होगा। इसने 1 और घंटा इंतज़ार किया। अब इसे पूरा यकीन हो गया कि सब सो चुके होंगे, तो वो आहिस्ता घर से बाहर निकला और कब्रिस्तान के रास्ते की जानिब चल पड़ा। कब्रिस्तान पहुंचते ही पहले ही कब्र पे इसने मंत्र पढ़ा और मुर्दा कब्र से बाहर निकल आया। दूसरे मंत्र पे मुर्दे ने अपना कफन उतार दिया और तीसरा मंत्र तो इसके पास था ही नहीं। जैसे ही इसने कफन उठाया और चलने लगा, मुर्दा इसके पीछे पीछे चलने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो मुर्दा साथ आ रहा था। ये काफ़ी डर गया। डर के मारे इसके पसीने छूटने लगे। उसने सोचा कि शायद तीसरा मंत्र सिर्फ मुर्दे को कब्र के अंदर लेकर का था। ये नहीं सोचा था कि तीसरे मंत्र का काम मुर्दे से जान भी छुड़ाना है। मगर अब वो घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि गांव वालों को अगर इस पर नज़र पड़ गई तो वो इसे जालिम जादूगर या कुछ और समझकर इसे गांव से निकाल देंगे या फिर उसे मार डालेंगे। बेचारा लड़का अब बुरी तरह से फंस चुका था। हैरान और परेशान जरा कब्रिस्तान के चारों तरफ रोता हुआ भटक रहा था। इस तरह पूरी रात कब्रिस्तान में भटकते हुए गुजरी। सुबह होते ही कबल उसने जंगल का रास्ता लिया। पूरा दिन जंगल में सोचता रहा कि शायद कोई आइडिया आ जाए जिससे मेरी जान छूटे। अब सूरज ढल रहा था और शाम होने वाली थी। डर, खौफ और दहशत पूरी तैयारी के साथ करीब बढ़ रहा था। एक तरफ जंगल की दहशत और खौफ, दूसरी तरफ वहशतनाक बदशक्ल मुर्दे का पीछा करना।
और तीसरी तरफ जंगल पूरे वहशी जानवरों से भरा पड़ा था। अचानक इसके दिमाग में आइडिया आया। इसने सोचा कि क्यों ना मैं बुढ़िया को कब्र पर जाऊं और इनको 2 मंत्रों से बाहर निकालूं और फिर इनसे तीसरा मंत्र पूछ लूं। पीछे पड़े मुर्दे के साथ कब्रिस्तान की तरफ भागा और बुढ़िया के कब्र पर जाके खड़ा हुआ तो बुढ़िया को मंत्रों की ताकत से कब्र से बाहर निकाला। वो अब इससे पूछ रहा था कि माँ जी प्लीज़ मुझे तीसरा मंत्र बता दो, मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती की है आपसे 2 मंत्र लेने की। 2 मंत्रों में मेरी उलझी ज़िंदगी 1 मंत्र देकर सुलझा दो। अब वो मुर्दे कैसे बोल सकते हैं? नौजवान के सामने वो बुढ़िया एक मुर्दा थी जो ताकतवर मंत्र की वजह से खड़ी तो थी मगर जिंदा नहीं थी। बुढ़िया से काम तो ना बना मगर पीछे पड़े मुर्दों की तादाद अब 2 हो गई थी। उसे एक बार फिर जंगल की तरफ भागना पड़ा। 2 दिन की भूख और प्यास ने बुरा हाल कर दिया था। कहीं से भी जिंदगी की किरण नजर नहीं आ रही थी। हर तरफ मौत ही मौत दिख रही थी। वो इधर उधर देख रहा था, भटक रहा था कि अचानक इसे दूर से आग की रोशनी नजर आई। वो इस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब करीब पहुंचा तो देखा कि एक बुजुर्ग है जिनके हाथ में लालटेन है। वो लड़का रोते हुए भागते हुए इनके पास पहुंचा। बुजुर्ग को देखते ही वो बोला कि शायद मेरे रब ने आपको मेरा मसीहा बनाकर भेजा है। ऐसा कहते ही वो इनके पाँव में गिर पड़ा और जिंदगी के खैरात मांगने लगा। बुजुर्ग ने नौजवान के सर पर हाथ रखा और उसे प्यार से कहा कि बेटा कुछ नहीं, ऐसी गलतियां नौजवानों से अक्सर होती रहती हैं। मेरे पांव पड़कर मुझे ज्यादा शर्मिंदा ना करो, खड़े हो जाओ। लड़का अपनी आंखें मलते हुए खड़ा हो गया। वो बुजुर्ग बोले कि इन मुर्दों ने तुम्हें बहुत तंग किया है, चलो मेरे साथ कब्रिस्तान, इनको ठिकाने लगाते हैं। वो दोनों कब्रिस्तान पहुंचे तो बुजुर्ग ने कहा कि मुझे वो मुर्दे खड़े करने वाले मंत्र बताओ। लड़के ने हैरत से उनको देखा और बुजुर्ग से कहा कि बाबा आपको कैसे पता कि मैंने ये मंत्र पढ़े हैं? तो वो हंसने लगे। उन्होंने जवाब दिया कि बेटा मैं भी कभी नौजवान हुआ करता था और इन मुश्किल तरीन लम्हों से गुजर चुका हूँ। तो उस लड़के ने फौरन से वो मंत्र बता दिए। बुजुर्ग बाबा ने इन मंत्रों के मुताबिक अपना विर्द पढ़ना शुरू किया और वो मुर्दे आहिस्तगी से कब्र में जाने लगे। उस लड़के के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई। वो बुजुर्ग बोले कि अब तेरे मंत्रों का असर ख़त्म हो चुका है मेरे इल्म के ज़रिए। वो लड़का खुशी खुशी उनके गले मिला और सुकून का सांस लिया। फिर वो अपने घर को चल पड़ा। उसके बाद उसने तौबा कर ली कि आइंदा वो दोबारा कभी ये मंत्र नहीं पढ़ेगा। सेकेंड स्टोरी मुल्तान से नौमान ने भेजी है। वो कहते हैं कि मेरा दफ्तर शहर के दरमियान में था, जहाँ हर वक्त तरह तरह के लोगों से मेरा ताल्लुक़ वास्ता पड़ता। सुबह सवेरे सारा शहर जाग जाता था और दुकानें खुल जाती थीं। रिक्शे वाले लिखकर रिक्शा सवारियों के पीछे भागते थे। बस स्टैंड पर दिल धरने की जगह ना होती। होटल वाले सबसे पहले होटल खोलकर ग्राहकों को निपटाते नजर आते। मेरा दफ्तर बाजार के सेंटर में था और खिड़की के सामने हर वक्त रौनक सी लगी रहती। जब कभी मैं दफ्तर के कामों से उकता जाता तो खिड़की खोलकर बाहर की गहमा गहमी देखने लग जाता। मसरूफ बाजार होने की वजह से भीख मांगने भी बहुत ज़्यादा होते थे। वो भीख मंगे मुख्तलिफ ढोंग रचाए बैठे होते, जिनमें से कुछ तो सचमुच के माजूर थे और कुछ लोग माजूरी का ड्रामा करते थे। झुग्गियों वाले काले पीले बच्चों के साथ इनके माँ बाप हाथ पर पट्टी बांधकर ऊपर खून या पायोरीन की तरह का रंग लगाकर बाजार में धकेल देते, जिनको देखकर ही लगता था कि ये माजूरी का ड्रामा कर रहे हैं। दफ्तर की खिड़की के सामने एक माजूर शख्स रेडी पर लेटा नजर आता था। इस आदमी के दोनों बाजू कंधों तक और टांगे भी घुटनों तक कटी हुई थी। ये इस बाजार का मुस्तकिल भिखमंगा था जो मुसलसल यही नजर आता था। ये कब जाता और कब आता था या इसको कौन लाता और कौन लेकर जाता, इसके बारे में मैं ला इल्म था। सख्त सर्दियों के दिन थे।
सुबह से ही बादल गरज रहे थे। देखते ही देखते हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और जब मैं दफ्तर आया तो खासा भीग चुका था। इस दिन मुझे कोई ख़ास काम भी नहीं था, इसलिए मैं खिड़की के सामने बैठ गया और मौसम एंजॉय करने लगा। आज रूटीन के मुताबिक बाज़ार में रश भी नहीं था। एक दो लोग ज़रूरी ख़रीदारी के लिए नज़र आ रहे थे। फिर मेरी नज़र इस माजूर शख्स पर पड़ी जो अपनी रूटीन के मुताबिक अपनी रेडी पर मौजूद था और बारिश से बुरी तरह भीग रहा था। आज इसकी रेडी गली के एक नुक्कड़ की तरफ लगी हुई थी जहां अभी तक किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी थी। उसको इस तरह भीगते देखकर मुझसे रहा ना गया और मैंने अपने टी बॉय को आवाज़ दी और उसको अपने साथ लेकर मैं बाहर निकल खड़ा हुआ। टी बॉय की मदद से मैं इस माजूर की रेडी खींच खांच कर दफ्तर के अंदर ले आया। बारिश से इसकी रेडी अंदर तक भीग चुकी थी और कंबल जिसमें वो लिपटा था वो भी भीग चुका था। मैंने सबसे पहले इसको हीटर के सामने रखा और बेंच पर लेटा दिया। फिर इसके बाद मैंने इसके कपड़े सूखने के लिए टांग दिए और इसके जिस्म को एक चादर से ढक दिया। वो शुक्रिया भरी नज़रों से मुझे देखने लगा। तब मैंने अपने टी बॉय को एक गर्म चाय लाने को कहा और अपने हाथों से उसको चाय पिलाई। उसने बहुत कमज़ोर सी आवाज़ में मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं इसके सामने ही बैठ गया और उससे बातचीत शुरू कर दी। इसके मुताबिक वो 2 साल तक पहले ठीक था, फिर एक हादसे में इसकी टांगें और बाजू चले गए और घर वालों ने इसको भीख मांगने के लिए ही रख छोड़ा। उसके मुताबिक वो इसके गुनाहों का नतीजा है। इसने मुझे अपनी कहानी शुरू से सुनाई। वो बोला कि मेरा नाम मकसूद है, मैंने प्री मेडिकल तक तालीम हासिल की थी, आगे MBBS करने का इरादा था, मगर घर के हालात ख़राब थे तो मुझे तालीम छोड़नी पड़ी। मेरा बाप दिहाड़ीदार मज़दूर था जिसकी कमाई से घर नहीं चलता था। 2 बहनें भी थीं सर पर बैठी। फिर मुझे मजबूरी में एक दफ्तर में चपरासी की नौकरी करनी पड़ी। वहाँ से भी मुझे 2 महीने बाद इसलिए निकाल दिया गया कि साहब ने अपने किसी जानने वाले को ये नौकरी दे दी थी। मैं चंद दिन तक दफ्तर के चक्कर लगाता रहा लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं। फिर मुझे पता चला कि नौकरी हासिल करने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ेगी। मैं जान गया था कि रिश्वत या सिफारिश के बिना दफ्तर में घुसने भी नहीं दिया जाता। मैं दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए थक चुका था। फिर कुछ ही दिन बाद मैंने बहुत सारे काम किए लेकिन कोई भी मेरा काम न चला। अब तो मैं मायूस हो चुका था। मैं इतना मायूस था और अपने घर जा रहा था कि उस शाम मुझे बचपन का दोस्त इलियास मिला। वो हमारे मोहल्ले में ही रहता था लेकिन आज उसे अचानक देखकर मुझे हैरत हुई। वो कराची में कोई बिज़नेस करने लगा था। उसके ठाट बाट देखकर मुझे रश्क आने लगा। इसके पास गाड़ी थी और इसके मुताबिक रुपए पैसे की उसको कोई कमी नहीं थी। हम दोनों एक करीबी होटल में चाय पीने बैठे तो मैंने इसके मुतालिक सब कुछ पूछा। मैंने अपने बारे में उसे बताया और उससे मदद की अपील की। उसने मुझसे वादा किया और मेरा नंबर लेकर चला गया। 1 हफ्ते बाद मैंने इसे कॉल की तो इसने मुझे बताया कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो गलत ज़राए से पैसे कमाता है। ये सुनकर मुझे दुख हुआ और मैंने दोबारा कभी इससे रब्ता ना करने की ठानी। इसके बाद मैंने एक दिहाड़ीदार मजदूर के तौर पर एक ईंटों के भट्टे में काम करना शुरू कर दिया। मगर एक दिन ठेकेदार हम सबको 2 महीनों की कमाई लेकर उड़ गया। इसके बाद मैंने अखबार बेचना शुरू किया मगर इसकी कमाई से मेरे हालात पर कोई असर ना पड़ा। एक दिन तंग आकर मैंने इलियास को फ़ोन किया और कहा कि मेरे लिए काम का बंदोबस्त करे, फिर चाहे वो डकैती हो या कत्ल। इसने शाम को मुझसे मिलने को कहा। शाम को घर के करीबी पार्क में हम दोनों बैठे तो मैंने इससे पूछा कि तुम क्या करते हो। वो बोला कि मैं मुर्दे बेचता हूँ और मेडिकल के शोबे से वाबस्ता लोगों को बेचता हूँ और एक लाश के 2 लाख तक मिल जाते हैं। और उसने ये भी बताया कि एक बड़ा मिनिस्टर इनकी फेवर कर रहा है, इसलिए ख़तरे की कोई बात नहीं। मुझे इसके अलावा कोई चारा नज़र ना आया तो मैंने इस शर्त पर हामी भर ली कि मैं लाश को हाथ नहीं लगाऊंगा, बस कब्र खोदने और दूसरे कामों में इनकी मदद करूंगा। वो मान गया और मुझे तैयार रहने को कहा कि किसी भी वक्त वो मुझे कॉल करके बुला सकता है। मैं वापस अपने घर आ गया। इस तरह 1 हफ्ता गुजर गया। एक दिन शाम को इसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि रात 10 बजे वो मुझे आगे गाड़ी में ले जाएगा। मैं तैयार रहा
और इनकी बताई जगह पर खड़ा हो गया। वो लोग आए और मुझे लेकर शहर के एक दूर दराज वीरान इलाके में ले गए जहाँ पर एक कब्रिस्तान था। गोरकन हमारे साथ मिला हुआ था, इसलिए काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इसके बाद हमने एक लाश निकाली और एक मेडिकल से रिलेटेड शख्स को बेच दी। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और मेरे दिन बदल गए। मेरे पास पैसे की फरावानी हो गई। हम मुख्तलिफ कब्रिस्तानों से लाशें निकालते और बेचते रहते। लाशें निकालने के बाद हम कब्रों को वापस असली हालत में मट्टी से भर देते थे। फिर एक दिन कहरे इलाही आ पहुंचा। हुआ यूं कि हमारे मुखबिर ने इत्तला दी कि उस गांव में एक औरत दफन हुई है जो अभी के अभी फौत हुई है। हम सब ने इसकी लाश निकालने का प्रोग्राम बनाया और सारे सामान लेकर रात को 2 बजे कब्रिस्तान पहुंचे। चांद की 14वीं रात थी, इसलिए हमारा काम आसान हो गया था। इस रात अलियास की तबीयत ठीक नहीं थी। इसने मुझे लाशें निकालने के लिए कहा। मेरा डर अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैं बिला जैसा खुदी हुई कब्र में उतरने को तैयार हो गया। जो ही मैं रस्सी लेकर कब्र में उतरा और लाश की टांगों में रस्सी डालने के लिए कफन हटाया तो एकदम से बिजली मेरे हाथों पर गिरी और बिजली की ये लहर इतनी तेज़ थी कि मेरी आवाज़ हलक से अटक गई और मैं तकलीफ से दोहरा होकर वहीं पर गिर पड़ा। बाहर खड़े मेरे साथियों ने जब ये मंजर देखा तो वो सब छोड़ छाड़ भाग निकले। मैं बड़ी मुश्किल से कब्र से निकला और कब्रों के बीचों बीच लेट गया, क्योंकि अब मुझ में कहीं जाने की हिम्मत नहीं रही थी। गोरको ने जब देखा तो उसने डर के मारे कि कहीं मेरा अपना भांडा ना फूट जाए, मुझे उठाकर गाड़ी में डाला और मुझे मुर्दा समझकर शहर के एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया और ख़ुद वहाँ से भाग गया। अगली सुबह मेरी आंख अस्पताल में खुली, जहाँ मेरे दोनों हाथ और पाँव काट दिए गए थे। कचरा चुनने वाले एक लड़के ने मुझे कचरे के ढेर पर पड़ा पाया था, तो मुझे लोगों की मदद से अस्पताल तक पहुँचा दिया। डॉक्टर्स ने जहर फैलने के डर से मेरे हाथ और पाँव काट दिए। पुलिस वालों ने मुझसे इस वाक़े का पूछा तो मैंने सब सच सच बता दिया, जिसकी वजह से मेरा सारा गिरोह पकड़ा गया। उस दिन के बाद घर वालों ने भी मेरा बोझ बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया और मुझे कमाई का जरिया बनाकर एक रेडी पर डाला और बाज़ार में रख दिया। शाम को घर वाले आते हैं और भीख के अच्छे खासे पैसे ले जाते हैं और अगली सुबह मुझे दोबारा इसी बाज़ार में छोड़ के चले जाते हैं। मेरे साथ यही होना चाहिए था। ये कहते हुए मकसूद रोने लगा और मैं तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ने लगा कि क्या पैसों के लिए इंसान इतना भी गिर सकता है। नेक्स्ट स्टोरी इस्लामाबाद से मरियम अब्बासी ने सेंड की है। ये एक सच्चा वाक़या है। मैंने बहुत साल पहले दादा अब्बू से सुना था कि वो कहते थे कि पुराने वक्तों में टीवी नहीं होते थे तो लोग सिनेमा घरों में जाया करते थे। उनका एक दोस्त था अख्तर ने उन सब दोस्तों के साथ मिलकर सिनेमा में फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। रात हो गई थी, इसलिए सब ने एहतियाती तौर पर अख्तर को कहा कि वो अपने दादा की छड़ी ले आए। पहली दफ़ा में तो दादा ने मना कर दिया। अख्तर के और इसके दोस्तों के ज़िद करने पर दादाजी ने वो छड़ी दे दी और कहा कि अगर इस छड़ी को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। फिर सब सिनेमा गए, फिल्म देखी और खूब मज़े किए और वापस आ गए। वापस आकर याद आया कि दादाजी की घड़ी तो हम वहीं पर छोड़ आए हैं, वो तो सिनेमा में थी। सब ने अख्तर को कहा कि जाकर अपने दादा की छड़ी ले आओ और अकेले जाने से डर रहा था, लेकिन सब ने इसे भेज दिया। रास्ते में एक कुआं था। कहा जाता था कि वहाँ एक आदमी है जिसका सर कटा हुआ है। वो कुआं सरकटे के नाम से मशहूर था। अक्सर लोगों ने रात के वक्त सरकटा आदमी देखा था वहाँ। अख्तर वहाँ से गुजरा तो उसे वही सरकटा आदमी दिखा। वो बहुत डर गया और आंखें बंद करके तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। अचानक से इसे अपने पीछे से घुंघरू की आवाज़ आई। इसने पीछे मुड़कर देखा तो बकरी की तरह का एक जानवर था। फिर दोबारा जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो वो उड़कर इसके आगे आ गया। जब उसने आगे की तरफ देखा तो वो इसके पीछे था। फिर उसने आयत पढ़ी और चलना शुरू कर दिया। अख्तर ने सिनेमा से दादाजी की छड़ी ली
اور واپس آنے لگا۔ اسے پھر سے وہی آواز اور جانور نظر آنے لگا۔ اختر بہت کوشش کے بعد اس نے اس جانور کو پکڑا اور گھر لا کر اپنی چارپائی کے ساتھ باندھ دیا اور وہ سو گیا۔ جب اچانک سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ جانور ایک عورت کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے، جس کی لال اور بڑی آنکھیں اور بہت لمبی ناک تھی۔ وہ کاغذ پر کچھ لکھتی اور پھاڑ کر بار بار پھینک دیتی۔ ڈر سے اختر کی آواز بند ہو گئی تھی اور پسینے آ رہے تھے۔ اچانک وہ عورت اٹھی اور آ کر اختر کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اختر کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس کی انگلیاں اختر کے سر میں سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھیں، لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، ڈر کے مارے۔ اتنے میں دور کسی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آئی اور وہ عورت اٹھی اور اختر کے دادا کی چھڑی اٹھائی اور غائب ہو گئی۔ اختر کی اگلی صبح بہت تیز بخار تھا۔ وقت اسی طرح سے گزرنے لگا۔ اختر کی شادی ہو گئی۔ وہ ایک دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بازار گیا۔ اسے بازار میں وہ عورت دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں اختر کے دادا کی چھڑی تھی۔ وہ عورت اختر کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ یہ چھڑی مجھ سے خریدو گے؟ اختر نے اپنے دادا کی چھڑی 500 روپے میں خریدی اور دوبارہ اس عورت سے بات کرنا چاہی تو وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے بہت سے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی کو آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ وہ عورت کون تھی۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔